इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन के इस 19वें भाग में आपका पुनः स्वागत। टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, दीर्घकालीन पूंजी लाभों पर कर, सेक्शन 112 धारा 112। नंबर 1, कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स, रियायती दर पर कर, where the total income of an SSE includes long-term capital gains, tax is payable by the SSE at the rate of 20% on such long-term capital gains। जब एक करदाता की कुल आय में दीर्घकालीन पूंजी लाभ सम्मिलित होते हैं तो ऐसे करदाता को दीर्घकालीन पूंजी लाभों पर 20% की दर से कर चुकाना होता है। The treatment of long-term capital gains in the hands of different types of SSEs are as follows। अलग अलग करदाताओं के हाथों में दीर्घकालीन पूंजी लाभों पर कर लगाने के उद्देश्य से जो अधिनियम में उपचार उपलब्ध है वो इस प्रकार है। नंबर 1, रेजिडेंट इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, income tax payable at normal rates on total income as reduced by long-term capital gain plus 20% on such long-term capital gain। निवासी व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार दीर्घकालीन पूंजी लाभों को हटाने पर आई कुल आय पर सामान्य दरों पर देय आयकर में दीर्घकालीन पूंजी लाभों पर 20% की दर से करारोपण शामिल करते हुए कुल कर की गणना की जाएगी। However, where the total income as reduced by such long-term capital gain is below the maximum amount which is not chargeable to income tax, then such long-term capital gains shall be reduced by the amount by which the total income as so reduced falls short of the maximum amount which is not chargeable to income tax, and the tax on the balance of such long-term capital gains will be calculated at the rate of 20%। Domestic company long-term capital gain will be charged at the rate of 20%। घरेलू कंपनियां दीर्घकालीन पूंजी लाभों को 20% की दर से चार्ज किया जाएगा। नॉन कॉरपोरेट, नॉन रेजिडेंट और फॉरेन कंपनी, अनिवासी, अनिगमित करदाता या एक विदेशी कंपनी। ए long-term capital gains arising from the transfer of a capital asset being unlisted securities or shares of a company not being a company in which public are substantially interested would be calculated at the rate of 10% on the capital gains in respect of such asset without giving effect to the indexation provision under second proviso to section 48 and currency fluctuation under first proviso to section 48। पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण से उत्पन्न दीर्घकालीन पूंजी लाभ असूचित प्रतिभूति होने के नाते या एक कंपनी के अंश सार्वजनिक रुचि वाली कंपनी न होने के नाते धारा 48 के प्रथम प्रावधान के तहत मुद्रा में उतार चढ़ाव और धारा 48 के द्वितीय प्रावधान के तहत सूचकांक प्रावधानों के प्रभाव दिए बिना उस संपत्ति के संबंध में पूंजी संपत्ति पर 10% की दर से मूल्यांकित होगा। बी इन रिस्पेक्ट ऑफ
other long-term capital gains, the applicable rate of tax would be 20%. अन्य दीर्घकालीन पूंजी लाभों के संबंध में लागू कर की दर 20% रहेगी. Number 4. Residents other than those included in one above long-term capital gains will be charged at the rate of 20%. निवासी जो उपर्युक्त एक के अतिरिक्त है, उन पर दीर्घकालीन पूंजी लाभों की 20% की दर से कर चार्ज किया जाएगा. Number 2. Lower rate of tax for transfer of listed securities and zero coupon bonds, where the tax payable in respect of any income arising from the transfer of a listed company, listed securities other than a unit or a zero coupon bond being a long-term capital assets exceeds 10% of the amount of capital gains before indexation, then such excess shall be ignored while computing the tax payable by the SSE. Consequently, long-term capital gains on transfer of units and other listed securities are not eligible for concession rate of tax at the rate of 10% without indexation benefit. Therefore, the long-term capital gains in such case is taxable at the rate of 20% with indexation benefit. However, in case of a non-corporate, non-residents and foreign companies, long-term capital gain arising from the transfer of a capital asset being unlisted securities or shares in a company in which public are not substantially interested are eligible for a concessional rate of tax at the rate of 10%. सूचीबद्ध प्रतिभूतियों और शून्य कूपन बॉन्डों के अंतरण पर कम दरों से कर. जहां सूचीबद्ध प्रतिभूतियों या यूनिटों या शून्य कूपन बॉन्डों जो दीर्घकालीन पूंजी संपत्तियां हैं के हस्तांतरण से अर्जित आय के संबंध में इंडेक्सेशन से पूर्व पूंजी लाभों पर देय कर 10% की दर से चार्ज किया जाएगा. परिणामतः ऋणोन्मुखी म्यूचुअल फंड की इकाइयों एवं गैर सूचीकृत प्रतिभूतियों के अंतरण पर उपार्जित दीर्घकालीन पूंजी लाभ 10% रियायती दर पर करारोपण के पात्र नहीं है बिना सूचकांक के लाभ के. अतः ऐसे मामलों में दीर्घकालीन पूंजी लाभ सूचकांक लाभ सहित 20% की दर से कर योग्य है. तथापि सूचकांक के लाभ के बिना 10% की रियायती दर से करारोपण ऐसी ऋणोन्मुखी इकाइयों पर उपार्जित दीर्घकालीन पूंजी लाभों पर उपलब्ध रहेगा जिनका अंतरण 1 अप्रैल 2014 से 10 जुलाई 2014 लोकसभा में वित्त संख्या 2 विधेयक प्रस्तुतिकरण की तिथि के मध्य हुआ है. Number 3. No Chapter 6A डिडक्शन अंडर LTCG. दीर्घकालीन पूंजी लाभों के संबंध में अध्याय 6A में कोई कटौती नहीं दी जाएगी. जैसा कि पूर्व में बताया जा चुका है कि 6A चैप्टर को हम डिटेल में बाद में पांचों शीर्षकों का अध्ययन करने के पश्चात करेंगे. The provisions of section 112 make it clear that the deductions under chapter 6A cannot be availed in respect of the long-term capital gains included in the total income of the SSE. धारा 112 के प्रावधान ये स्पष्ट करते हैं कि अध्याय 6A के अंतर्गत कटौतियां करदाता की कुल आय में शामिल दीर्घकालीन पूंजीगत लाभों के संबंध में उपलब्ध नहीं होती है. टैक्स ऑन long-term capital gain on certain assets under section
112A, कुछ संपत्तियों पर दीर्घकालीन पूंजी लाभ पर कर, धारा 112A। Concessional rate of tax in respect of LTCG on transfer of certain assets। कुछ संपत्तियों के हस्तांतरण पर दीर्घकालीन पूंजी लाभों के संबंध में कर की रियायती दर। In order to minimize economic distortions and curb erosion of tax base, Section 112A provides that notwithstanding anything contained in Section 112, a concessional rate of tax at the rate of 10% will be leviable on the long-term capital gains exceeding rupees 1 lakh on transfer of A, an equity share in a company, or B, a unit of an equity-oriented fund, or C, a unit of a business trust। आर्थिक विरूपण और कर आधार के अप्रक्षण नियंत्रण को कम करने के लिए नई धारा 112A अंतर्निर्दिष्ट की गई है। यह धारा निर्धारित करती है कि धारा 112 में कुछ भी निहित होने के बावजूद निम्न के हस्तांतरण पर 1 लाख रुपए से अधिक दीर्घकालीन पूंजी लाभों पर 10% रियायती दर लागू होगी। ए, किसी कंपनी में समतांश, बी, इक्विटी उन्मुख फंड की एक इकाई, सी, व्यावसायिक ट्रस्ट की एक इकाई। कंडीशंस, शर्तें। द कंडीशन फॉर अवेलिंग द बेनिफिट ऑफ दिस कंसेशनल रेट आर: ए, in case of equity shares in a company, STT has been paid on acquisition and transfer of such capital asset. B, in case of unit of an equity oriented fund or unit of business trust, STT has been paid on transfer of such capital asset। इस रियायती दर का लाभ उठाने के लिए निम्न शर्तें होगी। ए, कंपनी में समतांशों के मामले में उस पूंजी संपत्ति हस्तांतरण और अधिग्रहण पर एसटीटी सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स का भुगतान किया जाएगा। बी, इक्विटी उन्मुख फंड की इकाई या व्यावसायिक ट्रस्ट की इकाई के मामले में एसटीटी सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स का भुगतान उस पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण पर किया जाएगा। Further, however, the central government may, by notification in the official gazette, specify the nature of acquisition of equity share in a company on which the condition of payment of STT on acquisition would not be applicable। हालांकि केंद्र सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा कंपनी में समता अंश के अधिग्रहण की प्रकृति निर्दिष्ट करेगा, जिस पर अधिग्रहण पर एसटीटी के भुगतान की शर्त लागू नहीं होगी। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स अराइजिंग फ्रॉम ट्रांजैक्शंस अंडरटेकन ऑन ए रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज located in an international financial service center IFSC would be taxable at a concessional rate of 10%, where the consideration for transfer is received or receivable in foreign currency, even though STT is not leviable in respect of such transfer। विदेशी वित्त सेवा केंद्र IFSC में स्थित मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर लिए गए लेन देन से उत्पन्न दीर्घकालीन पूंजी लाभ 10% की रियायती दर से कर योग्य होगा, जहां हस्तांतरण के लिए प्रतिफल विदेशी मुद्रा में प्राप्त या प्राप्य होता है, भले ही उस लेन देन के संबंध में STT का भुगतान नहीं होता है।
नंबर 3, एडजस्टमेंट ऑफ अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, असमाप्त सामान्य छूट की सीमा का समायोजन। In the case of resident individuals or HUF, if the basic exemption is not fully exhausted by any other income, then such long-term capital gain exceeding rupees 1 lakh will be reduced by the unexhausted basic exemption limit, and only the basic balance would be taxed at 10%. However, the benefit of adjustment of unexhausted basic exemption limit is not available in case of non-residents. निवासी व्यक्ति या HUF के मामले में यदि सामान्य छूट किसी अन्य स्रोत द्वारा समाप्त नहीं होती तो रुपये 1 लाख से अधिक वह दीर्घकालीन पूंजी लाभ असमाप्त सामान्य छूट की सीमा से घटाया जाएगा और केवल बकाया 10% से कर लगाया जाएगा। हालांकि असमाप्त सामान्य छूट की सीमा के समायोजन का लाभ गैर निवासियों के मामले में उपलब्ध नहीं होगा। नंबर 4, नो डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A अगेंस्ट LTCG अंडर सेक्शन 112A. Deduction under Chapter 6A cannot be availed in respect of such long-term capital gains on equity shares of a company or units of an equity-oriented mutual fund or unit of a business trust included in the total income of the SSC. धारा 112 के तहत कर योग्य LTCG के अधीन अध्याय 6A के अंतर्गत कोई कटौती नहीं दी जाएगी। व्यावसायिक ट्रस्ट की इकाई या इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड की इकाई या कंपनी के समतांश पर उस दीर्घकालीन पूंजी लाभ के संबंध में निर्धारित यानी करदाता की कुल आय में सम्मिलित अध्याय 6A के तहत कटौती उपलब्ध नहीं होगी। नो बेनिफिट ऑफ रिबेट अंडर सेक्शन 87A अगेंस्ट LTCG taxable under section 112A. Rebate under section 87A is not available in respect of tax payable at the rate of 10% on LTCG under section 112A. धारा 112A के तहत कर योग्य LTCG अधीन धारा 87 के A के तहत कटौती का कोई लाभ नहीं। धारा 112A के तहत LTCG पर 10% की दर से देय कर के संबंध में धारा 87A के तहत कटौती नहीं मिलेगी। थैंक यू।